علاقائی خبروں میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ جہلم اور دینا کے عوام کے لیے جدید سفری سہولت کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ الیکٹرک بس سروس کا باقاعدہ افتتاح وزیر مملکت بلال کیانی، صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر خان اور صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق نے کیا۔ اس موقع پر مشیر پنجاب ریٹائرڈ جنرل اظہر کیانی بھی موجود تھے۔ افتتاح کے بعد مہمانوں نے الیکٹرک بس میں سفر بھی کیا اور منصوبے کو عوامی سہولت کی جانب اہم قدم قرار دیا۔ تقریب میں مقامی MNA چودھری فاروق الطاف، سابق MPA راجہ اویس خالد، چودھری ندیم خادم اور مسلم لیگ نون کے دیگر رہنما اور پارٹی ورکرز بڑی تعداد میں شریک تھے۔ مہمانوں کا پھولوں کی پتیاں نچھاور کر کے پرتپاک استقبال کیا گیا۔ تقریب کے لیے گورنمنٹ ہائی اسکول میں پینڈال سجایا گیا جہاں کارکنان اور عوام نے بھرپور شرکت کی۔ ٹوبہ ٹیکسنگ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات میں 700 سے زائد وکلاء اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ اتفاق گروپ اور اتحاد گروپ کے درمیان کانٹے دار مقابلہ متوقع ہے۔ مزید جانتے ہیں افتخار سدھو سے۔ جی افتخار۔ ٹوبہ ٹیکسنگ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات 15 جنوری کو منعقد کیے جا رہے ہیں، جس کے لیے بار میں انتخابی سرگرمیاں عروج پر پہنچ چکی ہیں۔ انتخابات میں 700 سے زائد رجسٹرڈ وکلاء اپنا حق دہی استعمال کریں گے، جبکہ الیکشن کمیٹی کی جانب سے پولنگ کے تمام انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ سالانہ انتخابات میں دو بڑے گروپوں اتفاق گروپ اور اتحاد گروپ کے درمیان سخت مقابلہ متوقع ہے۔ اتفاق گروپ کی جانب سے صدر کے امیدوار مصور گادی، جبکہ جنرل سیکرٹری کے لیے عمر باجوہ میدان میں ہیں۔ ضلع ٹوبہ ٹیکسنگ میں بھی ہمارے جو ڈسٹرکٹ بار کے سالانہ الیکشن ہے وہ بڑے زور و شور سے ہیں اور وکلاء میں ایک بڑی گرم جوشی ہے اس معاملے میں۔ تو دو بڑے گروپ ہیں، اتحاد گروپ اور اتفاق گروپ۔ ڈیلی پارٹیز بھی ہوتی ہیں اور وکلاء اکٹھے بھی ہوتے ہیں۔ دوسری جانب اتحاد گروپ نے صدر کے لیے میاں احسن اور جنرل سیکرٹری کے لیے انور گل کو نامزد کر رکھا ہے۔ دونوں گروپس وکلاء برادری کی حمایت حاصل کرنے کے لیے سرگرم ہیں۔ وکلاء کا کہنا ہے کہ یہ الیکشن بار کی آئندہ سمت کے تعین میں اہم کردار ادا کرے گا۔ کیمرہ مین علی حیدر کے ساتھ افتخار احمد، NTN نیوز، ٹوبہ ٹیکسنگ۔ نیو ایئر نائٹ کے موقع پر سہولت بازار خانیوال میں اسسٹنٹ کمشنر روہت کمار نے دورہ کیا۔ دورے کے دوران انہوں نے سہولت بازار کو خوبصورت اور عوام کے لیے پرکشش بنانے کے لیے لائٹنگ اور سجاوٹ کے فوری احکامات جاری کیے ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر نے متعلقہ عملے کو ہدایت کی ہے کہ نیو ایئر نائٹ کے موقع پر شہریوں کو بہتر سہولیات فراہم کی جائیں۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات بتا رہے ہیں خانیوال سے نمائندہ NTN نیوز شیخ سہیل۔ جی سہیل، آگاہ کیجیے۔ ہاں جی بالکل، سہولت بازار خانیوال میں اسسٹنٹ کمشنر روہت کمار نے جو وزٹ کیا ہے، پھل فروٹ سبزیوں کے ریٹ چیک کیے ہیں، ان کی جو ہے وہ تازہ بوب چیک کی ہے اور صفائی ستھرائی کے حوالے سے چیک کیا نیو ایئر نائٹ کے حوالے سے۔ سر بتائیے کہ نیو ایئر نائٹ کے حوالے سے اور جو آپ نے وزٹ کیا ہے سہولت بازار کا، تو آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ جی، سہولت بازار جو ہے وہ خانیوال کا ایک بہترین پروجیکٹ ہے جس میں ہم نے 125 دکانیں جو ہے وہ کھولی ہوئی ہیں۔ یہاں پہ صفائی ستھرائی کا نظام، واش رومز کی سہولت، پلے ایریا، اور اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ شاپس کی جو صفائی ستھرائی ہے اور ایک ڈیکورم کے ساتھ جو ہے نا یہاں پہ دکانیں چل رہی ہیں جس میں 125 دکانیں ہیں۔ اس کے علاوہ ابھی جو ہے وہ چیکنگ کی گئی، جیسے آپ نے دیکھا تھا کہ ریٹس یہاں پہ جو ہے باقی مارکیٹ کے حساب سے کم ہیں اور سب نے ریٹس کی پابندی کی ہوئی ہے۔ نیو ایئر کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ کیونکہ ہمارا اچھا پروجیکٹ ہے تو اس پہ ہم لوگ نیو ایئر کے حوالے سے کچھ چیزیں کرنے جا رہے ہیں جو جس میں لائٹننگ ہو گئی، شہریوں کے لیے ایک تفریح کا جو ہے نا وہ مقام ہم اس کو جو ہے کرنے جا رہے ہیں جو آج شام تک جو ہے ہو جائے گا۔ جی بالکل، جیسے اسسٹنٹ کمشنر کا یہی کہنا تھا کہ نیو ایئر نائٹ کے حوالے سے بھی ہم نے یہاں پر سجاوٹ کے انتظامات کیے ہیں، ریٹ بھی چیک کیا اور ریٹ بھی ان کا یہ کہنا تھا کہ بازار سے جو ہے باہر آتے ہیں۔ جی، لودھرا میں شمشاہی نہریں بند ہونے کے باعث گندم کی فصل شدید خطرات سے دوچار ہے۔ کسان بدترین مالی بحران میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ کاشتکار حکومت سے فوری طور پر نہریں پانی بحال کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ لودھرا سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈسٹرکٹ رپورٹر غضنفر علی۔ جی غضنفر، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، ضلع لودھرا کی شمالی نہریں تقریباً 1 ماہ سے بند ہیں۔ جو فارمر ہیں، کسان ہیں، ان کی گندم تقریباً 2 ماہ کی ہو چکی ہے، جو اس وقت ان کو پانی کی بڑی اشد ضرورت ہے۔ جو ہے کہ پانی نہروں کی نہ ہونے کی وجہ سے اس کی پیداواری جو ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے۔ ہمارے پاس اس وقت ایک فارمر موجود ہے، مزید ان سے جانتے ہیں کن مسائل کا سامنا ہے۔ جی، اس وقت گندم کو پانی کی اشد ضرورت ہے، جو کہ ہم ٹیوب ویل کے ذریعے لگا رہے ہیں۔ 3 سے 4 گھنٹے پانی لگ جاتا ہے فی ایکڑ، جس کی وجہ سے کاسٹ زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو ہمارا مطالبہ ہے گورنمنٹ سے کہ نہروں میں پانی چھوڑا جائے تاکہ کسان کو کچھ نہ کچھ تو ریلیف ملے نا۔ جی بالکل، کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ بار وقت نہروں میں پانی چھوڑا جائے تاکہ گندم کی متاثر جو پیداوار ہے مطلوبہ پیداوار حاصل کی جا سکے۔ جی
हासिलपुर में मकामी इंतजामिया की मिली भगत से गैर कानूनी टाउन्स की भरमार। टाउन्स में बगैर नक्शा मंजूरी प्लॉट्स की खरीदो फरोख्त पर इंतजामिया की कारकर्दगी सवालिया निशान बन गई। शहरी लाखों रुपए की जमा पूंजी से महरूम हो गए। इसी हवाले से देखते हैं हासिलपुर से चौधरी मुदस्सर हुसैन की ये रिपोर्ट। हमारे साथ बड़ी ज्यादती हो रही है। हासिलपुर इंतजामिया की मिली भगत से टाउन माफिया शहरियों को लूटने में मसरूफ। मकामी इंतजामिया ने टाउन माफिया को बगैर नक्शा मंजूरी टाउन्स में तामीरात की खुली छूट दे दी। गैर कानूनी टाउन्स में बुनियादी सहूलियात के बगैर प्लाटों की खरीदो फरोख्त ने शहरियों को लूटने पर मजबूर कर दिया। टाउन मालकान भी शहरियों को रजिस्टर्ड टाउन का झांसा देकर दोनों हाथों से लूटने लगे। जाम अब्दुल खालक से 5 मरले का प्लाट लिया था और हमने जमा पूंजी उसे सारी दे दी। 6 साल से हमें वो ब्लैकमेल कर रहा, हमें कुछ नहीं वहाँ बनाने देता, हमें रसीदें दी हैं, कब्जा दिया हमें। जितनी भी हासिलपुर के अंदर 2 नंबर टाउन है उनको लगाम डाली जाए और जो टाउन वाले हैं वो इस वक्त डॉन बने फिरते हैं। तो दूसरी तरफ चंद दिन कबल इंतजामिया और टाउन मालकान की बल्दिया में होने वाली मुलाकात ने मकामी इंतजामिया की मिली भगत का मुंह बोलता सबूत जाहिर किया, जिस पर शहरी टाउन मालकान के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते हुए कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। हासिलपुर में जितने भी गैर रजिस्टर्ड टाउन है इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये गरीबों का हक लूट के खा जाते हैं, सारी जिंदगी की जमा पूंजी ले जाते हैं। हासिलपुर के जितने जो टाउन बने हैं सारे 2 नंबर है, कब्जा माफिया के हैं। ये ब्लैकमेल करके लोगों से पैसे ले रहे हैं, उनको देख कुछ नहीं थे। हासिलपुर इंतजामिया हमेशा से ही टाउन माफिया से अपना हिस्सा बटोरकर शहर की खूबसूरती का ड्रामा चाहती रही, मगर हकीकत में शहर की खूबसूरती पर लगाए गए पैसे सरकारी खजाने से भी लूटने में मसरूफ रहे। जबकि सेक्रेटरी बल्दियात इस मामले से बेखबर क्यों और हासिलपुर की आवाम इन गैर कानूनी टाउन मालकान से कब तक लुटती रहेगी? हुकूमत वक्त के करप्शन से पाक दावे ही रहेंगे। कैमरा टीम के साथ चौधरी मुदस्सर हुसैन, NTN न्यूज़, हासिलपुर। ननकाना साहब रेलवे इंतजामिया और म्यूनसिपल कमेटी के दरमियान जमीन के तनाज़े ने गरीब रेहड़ीबानों का रोजगार दाव पर लगा दिया। रेलवे हुकाम और म्यूनसिपल कमेटी के दरमियान जगह की मिल्कियत का तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। तफसीलात बता रहे हैं ननकाना साहब से हमारे नुमाइंदे उसामा वर्क। जी बिल्कुल, ये मामला रेलवे इंतजामिया और म्यूनसिपल कमेटी के दरमियान ज़मीन के तनाज़े पर हुआ है, जो कि रेलवे इंतजामिया ने कार्रवाई करते हुए रेलवे की अराजी पर लगी फ्रूट की दर्जनों जो रेहड़ियां हैं वहां से साइड पे करवा दी हैं, जिसके नतीजे में रेहड़ी बानों का लाखों रुपए का माल जो है वो बर्बाद हो गया है और रेहड़ी बानों में शदीद गमो गुस्सा पाया जा रहा है। रेहड़ी बानों ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ और डिप्टी कमिश्नर ननकाना तस्लीम अख्तर राव से मुतालबा किया है कि दोनों अदारों के दरमियान हदूद का तयन किया जाए और उन्हें मुतबादल जगह फराहम की जाए ताकि वो अपना रोजगार कमा सके। कैमरामैन टीम के साथ उसामा विरक, NTN न्यूज़, ननकाना साहब। बुरेवाला में सैलाब ज़दा इलाकों में सड़कों की बहाली को ताहाल मुमकिन ना बनाया जा सका। जिला विहाड़ी के बड़े तिजारती मरकज साहुका को बुरेवाला, लिडन, चश्तियाँ और पाकपतन को मिलाने वाली सड़कें ताहाल टूट फूट का शिकार हैं, जिसकी वजह से इलाका मकीनों को शदीद सफरी मुश्किलात का सामना है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा NTN मोहम्मद शहबाज कुरैशी की इस रिपोर्ट में। बुरेवाला रवां साल के सैलाब के पेश नज़र होने वाली तबाहकारियां आज भी हुकूमती तवज्जो की मुंतज़िर दिखाई दे रही हैं। बुरेवाला में सैलाब से सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला नवाही कस्बा साहुका जो दरियाए सतलुज के करीब वाक़े है, जहां बुरेवाला को ज़िला बहावन नगर की तहसील चिश्तियाँ से मिलाने वाली मेन शाहराह टूट फूट का शिकार है। इसके अलावा साहुका से लुड्डन कच्ची पक्की रोड और बुरेवाला आने वाली शाहराह समेत दीगर शाहराएँ शदीद टूट फूट का शिकार हैं, जिसके बायस इलाका मकीन, तजारती, कारोबारी मराकज, तलबा तालबात और मरीजों को हस्पताल ले जाने में शदीद सफरी मुश्किलात से दो चार हैं। हुकूमत पंजाब की जानब से इन तमाम टूट फूट का शिकार होने वाली रोड्स पर ताहाल मुरम्मत का काम शुरू ना करवाया जा सका। 2025 ਦਾ ਸਲਾਬ ਤੱਕ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀਆਂ ਤਬਾਹਕਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਤਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਪਏ, ਸਾਡੇ ਰਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤਬਾਹ ਹਨ ਪਏ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਜਨਾਬ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ हॉस्पिटल तक नहीं जा रहे, साडे जेडे फसल है वो मंडी तक नहीं पहुंच रही, साडा सारा निजाम धरम भरम हो चुका है। साडे आन जान वास्ते बड़ी मुश्किलात बनी हुई है। साडी मरियम नवाज अगे स्पेशल रिक्वेस्ट है कि मेहरबानी करके साडे इस रस्ते नु बहाल किया जाए। साडे MN MP साडी कोई नहीं सुन रहा है इस वक्त तक। इलाका मकीनों ने शदीद एहतजाज करते हुए कारोबारी मरकज कस्बा साहुका के तमाम शाहराहों की असर तमीर नौ के लिए वजीर आला पंजाब से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है, ताकि अवामुन्नास की रोजमर्रा
रोजमर्रा मामूलात ज़िंदगी बहाल हो सके और सफरी मुश्किलात से बचाया जा सके। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद शहबाज कुरैशी, NTN न्यूज़ बूरेवाला। पंजाब भर की तरह मुंशनाबाद में भी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कानून के खिलाफ वर्जी करने पर क्रैक डाउन जारी है। आगाह कर रहे हैं नईम शहजाद। ट्रैफिक कानून की पासदारी लाजमी है। बगैर लाइसेंस गाड़ियां और बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने वालों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयां जारी हैं। इस पर ट्रैफिक इंचार्ज मिंचनाबाद का कहना था कि आप लोगों के मीडिया वाले भाइयों के तवज्जुह से लोगों से मिंचनाबाद के वासियों से गुजारिश है कि वो हेलमेट के इस्तेमाल को यकीनी बनाएं, अपना लाइसेंस हासिल करें। मोटरसाइकिल का लाइसेंस 5 मिनट में मिलता है। हमारे ऑफिस हैं खिदमत मरकज मिंचनाबाद में, और जो ऑफिशियल फी है वो पे करें अपने ही मोबाइल से और अपना लाइसेंस हासिल करें। इसी तरह अब हेलमेट एक कानून बन गया है, तो हेलमेट का इस्तेमाल जरूरी है। अपनी जिंदगियां बचाएं, बाकी रोड यूजर की जिंदगियां बचाएं। तो हम लोग ये कार्रवाई हमारा करने का मकसद ये है कि लोगों को बचाया जा सके, ना कि लोगों को पेनल्टी करें, हम फाइन करें। अगर लोग वायलेशन नहीं करेंगे तो हम उनको इंशाल्लाह फाइन नहीं करेंगे, अगर वायलेशन होगी तो उसमें फाइन होगा। कैमरामैन टीम के साथ नईम शहजाद, NTN न्यूज़ मिंचनाबाद। मोहब्बत, अमन और भाईचारे की अलामत शहर ढेर की, जो ज़राअत और सनत के हवाले से पहचाना जाता है, साल 2025 में दुगने बजट के बावजूद तालीम, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोज़गार, खेल और सैर व तफरी के साथ साथ अमन व अमान की ख़राब सूरत हाल जैसे संगीन मसाइल से दो चार रहा। ताहम शहरियों ने हर मुश्किल में अपने वतन से वफादारी का अमली सबूत दिया। मज़ीद तफसीलात अली रज़ा सोमरो की इस रिपोर्ट में। मोहब्बत, अमन और भाईचारे का दूसरा नाम शेर ढेर की, जहाँ मुसलमान, हिंदू, सिख और ईसाई बिरादरी बाहमी एहतराम और रवादारी के साथ रहते हैं। यह शहर बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की एक रोशन मिसाल है। ज़राअत और सन्नत के शोबों ने ढेरकी को न सिर्फ मुल्क भर में पहचान दी, बल्कि सिंध हुकूमत को अरबों रुपए का रेवेन्यू भी फराहम किया। मगर इसके बावजूद भी यहाँ के शहरी, खुसूसन नौजवान, आज भी रोजगार के हुसूल के लिए परेशान दिखाई देते हैं। साल 2025 में टाउन इंतजामिया ने बजट दुगना करने का ऐलान किया, लेकिन शहर की हालात बदल न सकी। सड़कें सीवरेज के पानी में भर गई, सफाई सुथराई का निजाम अबतर हो गया और कचरा कुंडी मामूल बन गई। साल हो गए हम डहर की मुस्तफाबाद कॉलोनी के रिहायशी है। डहर की टाउन कमेटी का जो 81 करोड़ बजट आया था, उसके बावजूद भी ये हमारी गलियां नहीं बन सकी। हम गंदे पानी से गुजर हो रहे हैं, गंदे पानी में हम जी रहे हैं। तालीम, सेहत और बुनियादी सहूलियात की सूरत हाल भी मायूस कुन रही। तालीमी मंसूबे मुकम्मल ना हो सके। मीठे पानी की फराहमी का मंसूबा 2014 से अल्तवा का शिकार है, जबकि सरकारी अस्पताल में अद्वियात और अमले की कमी ने शहरियों को महंगे और निजी अस्पतालों का रुख करने पर मजबूर कर दिया। शहर का वाहिद पब्लिक पार्क भी तबाही का शिकार रहा। ढेरकी में वाहिद पार्क है, जो कि हम इधर खेलने आते हैं, खेलने के लिए कोई सहूलत नहीं है, और यहाँ पर गंदा पानी भी छोड़ा गया है, और यहाँ पर जो झूले थे वो भी चोर लेके गए हैं, और यहाँ पर जंगलात के मंजर में ये आग। गुज़िश्ता रोज शहर शिकारपुर में बारातियों पर फायरिंग का वाक़या, दूल्हा समेत 3 अफराद कत्ल। वाक़े पर अमरुबाब चांडियो सरदारी निज़ाम पर फट पड़ी। कहती हैं शादी के मौके पर फायरिंग होना इंसानियत पर हमला है। अमरुबाब चांडियो ने सरदारी और कबायली निज़ाम को इस सानिया का जिम्मेदार करार देते हुए कहा, ऐसे गलत फैसले कई घर उजाड़ देते हैं। जहाँ पे औरतें, छोटे बच्चे कहाँ पर जाकर फायरिंग किए, थोड़ी सी गैरत सीखे कि भाई किस जगह पे हम जाकर बदला ले रहे हैं। अदालतें सॉरी टू से नाकाम हो चुकी है। हमारा जस्टिस सिस्टम वाकई नाकाम हो चुका है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी कानून हाथ में ले लेगा। ये मैं समझती हूँ कि सोचने का वक्त है हमारे इंसाफ फराहम करने वाले इदारों के लिए कि सिंध में ये जो कबायली झगड़े और ये जो खून की होली रचाई गई है, उसका जिम्मेदार कौन है। मैं समझती हूँ ये पूरा सिस्टम इसका जिम्मेदार है कि जो इंसाफ नहीं फराहम कर सकता, जो कातिलों को सजा नहीं दे सकता, जो जुल्म को नहीं रोक सकता। मैं बतौर सिंध और पाकिस्तान की बेटी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब आसिम मुनीर साहब फील्ड मार्शल, और मैं जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से सवाल करती हूँ कि एक आम आदमी होने के नाते मेरे जहन में आज क्या सवाल उभर रहा है। मेरे जहन में ये सवाल है कि वाकई क्या ये सरदार, जागीरदार, वडेरे आप लोगों से ज़्यादा ताकतवर है, आपके कानून से, आपके आइन से ज़्यादा ताकतवर है, आपके इदारों से ज़्यादा ताकतवर है कि इनको कोई भी पट्टा डालने के लिए तैयार नहीं है, ये जुल्म रोकने के लिए तैयार नहीं है। मैं समझती हूँ अगर आप में से किसी के पास भी इसका कोई जवाब है तो मैं मुंतज़िर हूँ कि उसका तगड़ा जवाब मुझे मिलेगा।
सूबाई वजीर बराए यूनिवर्सिटीज़ और तालीमी बोर्ड सिंध मोहम्मद इस्माइल राहो ने बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन लाड़काना में डिजिटल लैब और ई मार्किंग लैब का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब में सेक्रेटरी यूनिवर्सिटीज़ और बोर्ड्स मोहम्मद अब्बास बलोच, चेयरमैन इंटर बोर्ड लाड़काना, बोर्ड के अफसरान और दीगर मुतालिका अमला भी मौजूद था। सूबाई वजीर को बोर्ड की मजमूई कारकर्दगी, इम्तहानी निज़ाम और इंतज़ामी उमूर से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इस्माइल राहो ने कहा कि ई मार्किंग लैब के क़याम का मकसद जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए इम्तिहानी निज़ाम को शफाफ बनाना और नताइज की बरवक्त तैयारी और ऐलान को यकीनी बनाना है। सिंध हुकूमत तालीमी बोर्ड्स में इस्लाहात के अमल को तेज़ कर रही है ताकि तलबा को जदीद और मयारी सहूलियात फराहम की जा सके। इम्तिहानी निज़ाम में जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वक्त की अहम ज़रूरत है और ई मार्किंग की शफाफियत बढ़ेगी जबकि नताइज वक्त पर जारी किए जा सकेंगे। इसी के साथ इलाकाई खबरों से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NTA न्यूज़।